Her name was Hannah. उसका नाम था हन्ना। And this woman in the Old Testament, it talks about her, she was childless. और पुरानी कलार में जो है इसके बारे में बताया गया है कि वो बांझ थी, इसका कोई बच्चा नहीं। And she and her husband, they loved each other. और उसका पति और उससे जो है आपस में बेहद प्यार करते थे। And you know, in the old custom, it was mandatory that there should be somebody that should carry on the name of the generations. और पहले तो आपको पता है कि बहुत ही जरूरी था कि कोई हो ऐसा वारिस या ऐसा कोई बच्चा जो उनके नाम को आगे ले जाए। So Hannah and her husband, they both sat and they talked about it. And Hannah said, you know what? I can give you a child. और हन्ना और उसके पति ने बैठकर बात की और हन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें जो है बच्चा नहीं दे सकती। You marry someone else. तो आप किसी और से शादी करो। So with her consent, he married another woman. और उसकी जो है उसके रजामंदी से उसने हाँ कर दी। And this woman was very futile. और ये जो स्त्री थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। She had many children. और उसके बहुत सारे बच्चे थे। But does that mean that Hannah never desired children? तो क्या इसका मतलब ये है कि हन्ना का दिल नहीं था कि उससे बच्चा हो? She still just wanted one, because every time the other wife would speak, she would taunt her that she is childless. She is childless. और इस तरह से जो है उसे बच्चा चाहिए था, क्योंकि हर हमेशा जो स्त्री थी वो उसे ताना मारती थी कि ये तो बांझ है। The other wife of her husband, और वो जो दूसरी पत्नी थी उसके पति की, she kept making her feel even more bad that she is childless. और बार-बार जो है उसे ताने देती थी, इसलिए उसे बुरा लगता था कि वो बांझ है। So Hannah cried before the Lord. और इसलिए हन्ना जो है उसने परमेश्वर के सामने वो रोई। Like she prayed before, she's praying now. She says, God, give me a child. Lord, give me a child. Lord, give me a child. और जैसे उसने पहले प्रार्थना की थी, वो फिर रो रही है, प्रभु के सामने प्रार्थना कर रही है, प्रभु जी मुझे बच्चा दे दे। And she kept repeatedly asking. और बार-बार वो मांगती थी। But God was not giving her a child. लेकिन परमेश्वर उसे बच्चा दे ही नहीं There was रहा। somebody sitting here. और यहाँ पर कोई बैठा है। Repeatedly you ask from the Lord for something and He doesn't give, and you are so frustrating, Jacob. और बार-बार आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और वो आपको नहीं देता है, तो आप कितने बेचैन हो जाते हो। One day she was fed up of all that other woman would tell her. और इस तरह से एक दिन तो वो इतनी थक गई थी वो दूसरी औरत के ताने सुन के। She went to the husband, let's go to the temple, she said. और उसने अपने पति से कहा आओ चलो मंदिर चलते हैं। And they went to the temple, and this woman, she cried and she cried and she cried before the Lord. और वो मंदिर में गए और ये स्त्री जो थी वो इतना रोई परमेश्वर के सामने। Until the time came her tears finished. जब तक ऐसा समय आया कि उसके आंसू भी सूख गए। Now she had no more strength to cry also. और अब ताकत भी नहीं रही थी और रोने की। Bible says बाइबल कहती है she lay at the altar, और वो जो है बेटी पर पड़ी रही totally exhausted. और पूरी तरह से थक चुकी। I don't know if you have ever been in that situation. मुझे नहीं मालूम कि कभी आप ऐसे हालात में आए। I came and cried several times at this altar. इस वेदी पर आकर कितनी बार मैं रोई हूँ। And I've cried till my tears finish. और तब तक रोई हूँ जब तक मेरे आंसू ना खत्म हो। There comes a time that no more tears, but you're tired, you're exhausted. और ऐसा समय आता है जब आपके आंसू सूख जाते हैं, जब आप थक जाते हो। And this woman was tired. और ये स्त्री भी थक गई। She cried और वो रोती रही and she prayed. और उसने प्रार्थना की। And now she's lying there और अब वो वहाँ पर पड़ी without strength. उसमें बिल्कुल भी ताकत। And she's mumbling in her mouth और अब जो है वो अपने मुंह में ही वो कह रही है something that nobody can hear. ऐसी चीज जो वो कोई और नहीं सुन सकता। The priest Eli walked in the church. और वो जो याजक था एलाई वो कलीसिया में आया। And he saw this woman lying on the floor. She must have had beautiful hair all over the place. And he could hear her saying something, but didn't know what. और जब उसने आके देखा कि ये खूबसूरत सी बाल बिखराए पड़ी हुई है और कुछ कह रही है, लेकिन वो नहीं सुन पा रहा है। He thought this woman drank too much. और उसको लगा कि ये जो औरत है वो बहुत ही पी कर आई है। And she is now intoxicated. और इसलिए अब वो नशे में है। And she's just mumbling in her mouth. और वो जो है अपने ही मुंह में कुछ कह रही है। When the priest went closer to this woman Hannah, और वो जो याजक था वो इस हन्ना के पास गया। he heard her say something. और उसने सुना कि वो क्या कह रही है। He heard her say to God, God, और give me a son. और Just give me a son. और वो जब उसके पास गया तो उसने उसे यह कहते हुए सुना, प्रभु मुझे सिर्फ बेटा दे दे। Just give me one son. Just take this curse, this blame from my life that I cannot bear children.
Take this curse from my life. और ये श्राप मुझ पर से उठा लो, Take this curse. ये श्राप उठा लो। God, give me one son. प्रभु मुझे एक बेटा दे I दे will give this son back to you. और ये बेटा मैं तुझे ही I'll लौटाऊंगा bring him to your temple and I'll give him in your temple. और मैं तेरे मंदिर में लाऊंगी और तेरे मंदिर के लिए उसे छोड़ दूंगी। But wipe this curse from my name. लेकिन ये जो श्राप है मेरे नाम से उठा दे, Because beloved, क्योंकि प्यारो, for a woman to be childless, क्योंकि जो स्त्री बांझ होती है जिसका बच्चा नहीं होता, in the culture, that was also a curse. और उन रिवाजों में जो है ये श्राप माना जाता था। And she just lay there mumbling this to God. और वहीं पे पड़ी पड़ी वो बस अपने मुंह ही मुंह में परमेश्वर से कह रही थी। And on the other hand, the story tells us और दूसरे हाथ कहानी हमें ये कहती है that the Israelites were led with a very wise and strong leader. His name was Moses. और इजरायली जो थे उनका जो अगुवा था वो बहुत ही बुद्धिमान और मजबूत था, मूसा। And he led people to God. और वो जो परमेश्वर के पास लोगों को ले जाने की अगुवाई करता But था। the time came that he died and his predecessor Joshua came. और एक समय आया कि वो मर गया और उसके बाद जो यहोशू था वो आया उसकी जगह पर। Now in this scene we see, now Joshua is a man of God. He leads people to God. और ये दृश्य हम देखते हैं कि यहोशू जो है वो परमेश्वर का जन है और वो परमेश्वर की ओर सबकी अगुवाई करता है। And Joshua died. और यहोशू भी मर गए। And God kept raising one man after the other to lead the people to walk in the ways of God. और परमेश्वर जो है किसी न किसी को खड़ा करते थे ताकि वो परमेश्वर के लोगों को उसकी अगुवाई में चलाए। There would be those people that would hear from God and tell people what they needed. और वो ये लोग थे जो परमेश्वर से सुनते थे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि लोग करें और लोग वो करते थे। They would lead people to repentance. और अगुवाई करते थे लोगों की कि वो पश्चाताप करें। And they would bring people closer to God. और फिर वो परमेश्वर की नजदीक उन्हें ले आते थे। And in the Bible there is a book called Judges. और बाइबल में एक पुस्तक है जो न्यायी In the कहलाती Old है। Testament you will find it. नए पुराने करार में आप देखेंगे In that book you will find those men that they were the judges, the men and women that God had used. और उस अध्याय में आप देखेंगे स्त्री और पुरुष जो परमेश्वर ने बयान किया है। Now what happened? और फिर क्या हुआ? A time came that God could not find anyone appropriate whom he could appoint to lead his people to him. और ऐसा समय आया कि परमेश्वर को कोई मनुष्य मिल ही नहीं रहा था जिसके कारण वो उसे नियुक्त करे कि वो उसके लोगों की अगुवाई करे। And the people of God were going in a moral downfall. और उसी तरह से जो परमेश्वर के लोग थे उनका हौसला गिरता गया। By and by. और थोड़ी और बाद में थोड़ी समय में What was happening? क्या हो रहा था? The people would go away from God, go into sin, and then get oppressed. और इस तरह से वो जो है लोग परमेश्वर से परे हो जाते, पाप में पड़ जाते और सतावन में पड़ जाते। God looks down to the priesthood of that city, of those people. और वो जो याजक थे उस शहर के और उसके और परमेश्वर ने देखा And there was none. और कोई था ही नहीं। Because Eli, the priest's sons, they were the ones leading people away from God instead of bringing them to God. और अलाई के जो पुत्र थे वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से परे ले जा रहे थे, इसके बजाय कि उन्हें उनके पास ले आए। Listen to me, church. इससे ध्यान से सुनो। God needed a man. परमेश्वर को एक व्यक्ति की He जरूरत needed a थी। person. एक व्यक्ति की जरूरत And थी there was none he could find. और कोई भी नहीं था जो उसे मिला। What did God do? तो प्रभु ने क्या किया? His eyes went on that woman who was childless. और परमेश्वर की नजर उस स्त्री पर पड़ी जिसे कोई बच्चा न था। She was afflicted with a cultural curse. और वो सांस्कृतिक जो श्राप था वो उस पर था। She was lying in the temple saying something that caught God's ears. और वो वहाँ पर मंदिर में पड़ी कुछ कह रही थी जो प्रभु ने सुना। And what was she saying? और वो क्या कह रही थी? Give me a son. मुझे बेटा दे, I will give him back to you. मैं तुझे लौटा दूंगी। I will let him come and grow up in your house and serve you as long as he lives. कि मैं उसे तेरे ही मंदिर में बड़ा करूंगी और तेरी सेवा करूंगी। Bible says बाइबल कहती है God answered that cry तब परमेश्वर ने उस पुकार को सुन लिया and he gave her a son. और उसे बेटा दिया। This son whom she gave in the temple
और ये बेटा जो उसने मंदिर में लौटाया, later on he grew to be a great and mighty prophet of God whose name was Samuel. और बाद में जो है वो महान नबी बना और उसका नाम था शमूएल। The second important thing is God will make you wait on him. ये दूसरी बात कि परमेश्वर आपको अपने आप पर रुकाए रखेंगे। Why? क्यों? Because while he makes you wait, क्योंकि जब वो आपको रुकाए रखता है, you're waiting, आप रुके हुए हैं, he's able to do a work for you. तब आपके लिए कार्य वो कर सकता है। Just wait. बस सिर्फ रुके रहो। For time and short, I will tell you what this means. और आज जो है संक्षिप्त में मैं आपको बता दूंगी कि क्या है इसका मतलब। There was a king named Jehoshaphat. और एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात। He heard that there is enemy that is stronger than him and the other three kings that's coming to attack. और उसने सुना कि वो दुश्मन और वो राजा जो उस पर हमला करने आ रहे थे वो बहुत ही शूरवीर है। What should he do? तब उसे क्या करना चाहिए? He inquired of the Lord. उसने परमेश्वर से पूछताछ की। And you know what God said in 2 Chronicles chapter 20? और आप ये जानते हैं कि दूसरे इतिहास में 20 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा? Read it. These are not just stories God is speaking to you about your life in there. और इस पे विश्वास करो, ये कोई कहानी नहीं है जो प्रभु आपसे कह रहे हैं, लेकिन आपके जीवन पर अमल करने को कह रहे हैं। Jehoshaphat had an impossible situation. और यहोशापात के सामने ऐसे हालात थे जो उसके काबू में नहीं He थे needed God's intervention. और उसे चाहिए था कि परमेश्वर इसमें दखल दे। The army against him is strong. और वो जो सेना उसके खिलाफ खड़ी है बहुत ही मजबूत है। He needed something stronger to go against the enemy. और उसे कुछ उससे भी अधिक मजबूत चाहिए था कि जो उसके खिलाफ जा Have you सके। ever had that situation in your life? और कभी ऐसे हालात आपके जीवन में आई है Your problem is big. You need a bigger solution. और आपका जो समस्या है बहुत ही बड़ी है और आपको उससे बड़ा हल चाहिए। And you say, God, you got to come through. और कहते हैं, प्रभु तुझे मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। He says, wait. वो कहता है रुको। God, you want to bring an answer. He says, wait. और आप कहते हो प्रभु आपको जवाब देना पड़ेगा। God, I need a miracle. He says, wait. और आप कहते हो प्रभु आपको जवाब देना पड़ेगा। वो कहता है रुको। आप कहते हैं मुझे चमत्कार की जरूरत है। वो कहता है रुको। Imagine how frustrating it can be. और ये कल्पना कीजिए कि आप कितने व्याकुल हो सकते हैं। Now Jehoshaphat has an enemy approaching. He's got to save himself and his nation. And God says, wait. और आप ये सोचिए कि ऐसी हालात यहोशापात के सामने खड़ी थी, उसे अपने आप को बचाना था, अपने देश को बचाना था, लेकिन प्रभु कहते हैं रुको। Jehoshaphat could not even imagine what God had in his mind. और यहोशापात कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि परमेश्वर के मन में क्या है। He thought God will tell him which route to take, how to approach the enemy, what to do, and God is telling him, wait. और वो सोच रहा था कि प्रभु मुझको बताएंगे कि कौन से जरिए से जाओ, कौन से रास्ते से जाओ, लेकिन यहाँ तो प्रभु कह रहे रुको। And God, Jehoshaphat is waiting there for an answer. और यहाँ पे यहोशापात रुका हुआ है कि परमेश्वर से जवाब मिले। God is saying, praise him. और प्रभु कह रहे हैं उसकी स्तुति करो। Because while they were doing what God asked them to do, क्योंकि जब वो कर रहे थे जो प्रभु ने उनसे करने को कहा था, they could not even imagine. तब कल्पना भी नहीं कर पाते। God gave them in the same time a sliding victory over their enemy. और इस तरह से उसी वक्त परमेश्वर ने उन्हें संपूर्ण विजय दी। All you want to do is praise God, praise God, praise God. और आपको वही करना है कि आपको जो है उसकी स्तुति करनी, उसकी तारीफ करनी। Wait on Him, उस पर रुके रहिए and He will do what is needful. और जो जरूरत होगी उसे वक्त पूरा करना। And He was doing the needful. और वो जरूरत पूरा कर रहा था। Bible says बाइबल कहती है He did not only give Jehoshaphat and his men victory, the spoils were so much that it took them 3 days to gather them. और बाइबल बताती है कि सिर्फ विजय ही उन्हें नहीं मिली, लेकिन उनको इतना लूट का सामान मिला कि उन्हें गिनते गिनते 3 दिन हो गए। Bible says, बाइबल कहती है by waiting on the Lord, परमेश्वर पर रुके रहने से ही they saw the salvation of God. उन्होंने परमेश्वर के उद्धार को देखा। As I close, और जैसे हम समाप्ति I करें, must tell you this. मुझे ये कहना जरूरी है। What does it mean to wait on the Lord? क्या मतलब है जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर पर रुके रहो? When you're waiting on the Lord, जब आप परमेश्वर पर रुके रहें, it does not mean that you abandon your effort. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कोशिशें छोड़ दें। It does not mean that you just sit there on your leg upon your leg and hand upon your hand and be lazy. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है अपने हाथ पर हाथ धरकर, अपने पैरों पर पैर धरकर सुस्ता बन के बैठ जाएं। So what does that mean? तो इसका क्या मतलब है? What do we do when we're waiting on Him? तो हम क्या करें जब हम उसके लिए रुके हुए If you have a pen, write it down. हैं?
It means activity under God's command. इसका मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य कीजिए। What does that mean, Pastor? इसका क्या मतलब होता है पास्टर जी? It means इसका मतलब है you only move when God says move. और आप तभी आगे बढ़ो जब प्रभु आपसे कहे बढ़ो। Don't move till He says. जब तक वो ना कहे आगे मत बढ़ो। It is the ability to wait on the Lord और ये योग्यता होती है कि हम परमेश्वर पर रुके रहें until God tells you जब तक प्रभु आपसे न कहे what to do and how to do it. कि क्या करना है और कैसे करना है, कब तक। क्या आप सहमत हैं हमारे साथ? Are you with me, church? प्लीज क्या आप सहमत हैं? Wait until God tells you what to do and how to do. और जब तक ये न जान ले कि प्रभु आपसे क्या करने को और कैसे करने को कहते हैं। Pastor, how will I know that God is telling me? पास्टर जी मैं कैसे जानूंगा कि प्रभु मुझसे कह रहे हैं? Let me tell you one thing. तो एक बात मैं आपको बताऊं, When you wait on the Lord, जब आप परमेश्वर पर रुके रहेंगे, when you're obedient to Him, जब आप उसकी आज्ञा को you मानते हैं, will know. तब आप जान जाओगे। There is no ifs or buts about it. इसमें कोई अगर या मगर नहीं होता है, Because क्योंकि not everybody can wait on Him even though you heard this good message. और आपने ये बहुत अच्छा संदेश सुनकर भी हर कोई उस पर रुक नहीं सकता। You may say yes to the whole thing I'm saying, go out and you still do what you were doing. और अभी तो आप अपने सिर को हिला रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर आप देखिए जो आपकी मर्जी हुई थी वही करो। Because everybody does not have the ability to wait. क्योंकि सब में ये योग्यता नहीं होती है कि वो रुके रहें। Then who can wait on the Lord? Who will see the blessings of God? Who will inherit the promises of God? तो फिर कौन परमेश्वर की आशीषों को देखेगा, कौन उस पर रुकेगा और कौन उसके वायदों को पूरा होते देखेगा? Those who have built up great faith. और वो जिन्होंने भारी विश्वास